Jai Hind, good morning everyone. Hope you all are fit, fine and healthy at home. Today, I am your educator Gaurav Adhanik. Welcome you in the online educational platform organized by Devasya International School. In this video, we are going to start from the course of JCB Standard 10th History. The chapter which we are going to start today is chapter number 1, Heritage of India. So without wasting much time, let's get started. Student, this is your chapter number 1, Heritage of India. As we all know that India is one of the most ancient culture exist on earth. Even in Vishnu Puran, this shloka is mentioned, Uttaram Yat Samudrasya Himadrishchaiva Dakshinam Varshitad Bharatanava Bharati Yantra Sansita. The meaning of this shloka is India is extended to Himalaya in north and to Indian Ocean in south. यानी भारत का विस्तार उत्तर में हिमालय तक है और दक्षिण में हिंद महासागर तक. It is said that the new descendants are called Indians. यानी यहाँ पर रहने वाले हर प्रवासी को भारतीय यानी इंडियन कहा जाता है. और in ancient time, India is also named as in a different terms like number 1 Bharatvarsha, second Bharatkhand, Jambudweep या फिर Aryavata. These are the few different names which is very popular in the ancient time as well as India. So India, we all know that it is gifted with a very varied, बहुत ही विविध प्रकार की variety of diversity in nature as well as in culture. But whenever we are talking about the boundaries of our country, we are knowing it that in north we are having Himalaya, in south we are having Indian Ocean, in east we are having Bay of Bengal, and in west we are having Arabian Sea. So these are, we can say, the neighboring places of India which completes our culture and our diversity. Due to this mutual exchange of also seen in our culture, and just because of this diversity, the foreign peoples, the western side has attracted to our country and they have came here for the purpose of trade and settled here. After the settlement of this western culture adapted by India, and we have formed a very new, a very immense culture after it. So students, it is very much important that to understand our heritage is a transferred from generation to generation. यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हर वो चीज़, चाहे वो रिचुअल हो, हैबिट्स हो, कल्चर हो, कस्टम्स हो, हर वो चीज़ जो एक विरासत की तरह एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, हम उसे अपना हेरिटेज यानी विरासत कह सकते हैं. So let's move further and talk about location and area of India. In 9th standard we have studied about it. As you all know, it was very vast in the ancient time. India stand at the 7th rank in the population wise, 2nd rank. यानी एरिया के हिसाब से हम पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आते हैं, 7th पोजीशन, और पॉपुलेशन में हम 2nd पोजीशन पे आते हैं आफ्टर चाइना. सो this will talk we have about India. Now we'll move further. As you all know that India is a land of diversity. यहाँ पे अनगिनत भाषाएं, धर्म, रिलीजन, कास्ट कितने सारे मौजूद हैं. यानी हर किलोमीटर पर, हर थोड़ी दूरी पर हमें विविधता यानी वैरायटी देखने को मिलती है. और शायद यही वजह है कि जो हमारा कल्चर है वो बहुत रिच है मतलब इसमें जो वैरायटी है वो बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं. सो अवर जब मेन कॉन्सेप्ट जो हम अगर एक तरीके से कहें कि व्हाट इज़ द मेन बेसिक सेंस ऑफ आवर कल्चर, प्लीज़ अंडरलाइन फ्रॉम सेकंड लाइन, इट्स सत चित आनंद. यानी अगर हम बात करें, हमारा कल्चर इन 3 चीज़ों पर टिका हुआ है, सत, चित और आनंद. सत बिलोंग्स टू ट्रूथ, सत्य. चित belongs to man, it's our inner soul, and anand means pleasure. Whatever we are getting externally from the people, it's called pleasure. तो कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन में ये 3 बहुत ही मूलभूत सिद्धांत होते हैं
जो उस समय से लेकर अब तक भारतीय संस्कृति ने विश्व को बताया, सत्य, चित और आनंद। प्लीज़ अंडरलाइन दिस 3 टर्म्स। और यहाँ तक कि इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉन वायलेंस है, जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए जो उस समय लोगों के सामने रखे, विश्व के सामने रखे, उसे पूरे विश्व ने ना सिर्फ सराहा बल्कि उसे अपनाया भी है। और यही वैल्यूज़, नॉन वायलेंस वैल्यूज़ और ट्रूथ की वैल्यू लोगों ने समझी। नॉट जस्ट इट, द फर्स्ट civilization, the Indus Valley civilization was also developed here. You have also seen a movie of Mohenjo-daro, right? So we can say that our country is very rich and very wealthy, very intellectual, very much ability and talented, with full of skills. ठीक है? So we are from the ancient time, we are having numerous number of scholars, thinkers, artisans, saints, scientists and historians. Whether we'll talk about Aryabhatta, whether we'll talk about Chanakya, there are n number of people who has contributed immensely in the culture of India to make it more fruitful. So this culture, whatever we have got from our generation, whether it is habits, whether it is values, whether it is customs, whether it is tradition, whether it is a lifestyle, it is said as a heritage to us. Hope student you have got it कि हेरिटेज यानी विरासत हर वो चीज़ है, चाहे वो आदत हो, सिद्धांत हो, रीति रिवाज हो, हर वो चीज़ जीवन जीने का एक सही नज़रिया हम कह सकते हैं कि जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है वही सही मायने में हमारा कल्चर है. सो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर? हियर इन अ सिंगल लाइन इट वॉज अडेप्टेड दैट कल्चर मीन्स द वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का नज़रिया, जीवन जीने का तरीका ही हमारा कल्चर है. इट इज़ मेड विद द चेंजेस ऑकर्ड इन पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ और रेगुलेशंस, यानी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समाज में बदलाव आते गए, इन नियमों में, इन सिद्धांतों में भी लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तन करना, चेंजेस लाना शुरू कर दिया. इट इज़ सेड दैट द कल्चर इज़ ऑल अबाउट हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स. ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है. दिस 5 थिंग्स, नोट इट डाउन. हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आइडियल, लीडिंग्स ऑफ ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल. और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको कुछ स्थान पर, हाईएस्ट लेवल पर ले जाती है. होप यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग. लेट्स मूव फर्दर. The next topic which given to you in your textbook, it's cultural heritage of India. As I have told you that India is the land of diversity. बहुत ही विविध प्रकार से भारत में जो है कि भाषा हैं, धर्म हैं, लोग हैं, विस्तार में रहते हैं. And even in our school, in the morning we are doing prayer, our Indian pledge, right? In that you are repeating this slide that I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I hope you all are remember this line. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. यानी मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे इसकी विविध विरासत पर गर्व है. And just because of this sentence we can understand that India is the land of variety of culture, variety of heritage, which was passed by our ancestor to us without any kind of benefit. But whenever we are talking about heritage, we can divide heritage into 2 parts. ठीक है? First one is cultural heritage and second one is natural heritage. Right now I am beginning with the natural heritage first. As you can see on the screen, natural heritage in your textbook is divided into 4 parts: landscapes, rivers, vegetations and wildlife. ठीक है? I'm starting with landscapes first. In the previous video you have seen that landscape is anything which basis of as an earth. We can say that हर वो चीज़ जो कहीं ना कहीं जिसका संबंध ज़मीन से हो, धरती से हो, जिसका ढांचा ज़मीन से खड़ा होता हो, हम उसे लैंडस्केप कह सकते हैं. चाहे अगर हम उसे हिमालय कहें, राइट, हम जितने भी वेजिटेशंस हैं, माउंटेन्स हैं, स्प्रिंग बर्ड्स हैं, स्ट्रेंज बर्ड्स हैं, स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स, ये सारी चीज़ें जो हमने नेचर से प्राप्त की है, हम उन सब चीज़ को नेचुरल वेजिटेशंस के साथ साथ लैंडस्केप्स मानते हैं. सेकेंडली, एज यू कैन सी द rivers is very much important. It is also said as the lifeline of human beings, right? Or India is a land of river, right?
and if the rivers will not there, you cannot survive. The ancient rivers were Indus Valley and the Ravi River. Some of the most popular rivers in India are Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Krishna, Kaveri, and this all help us to make our water which we are using at drinking, domestic use, irrigation, electricity, वाटर वेस्ट, कई तरीक़ों से हम लोग इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद बात आती है वेजिटेशन की. वेजिटेशन यानी वनस्पति. भारत में वनस्पति भी बहुत विविध प्रकार की है. फ्रॉम एंशियंट टाइम पीपल आर इवॉल्विंग देमसेल्फ एंड टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड न्यू vegetations from the ancient time. It is proof that the love and affection toward flowers and herbs of Indians. Not just this, humans, animals, birds depend on trees for their food. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जानवर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रीज और नेचर पर ही डिपेंड करते हैं. और ऐतिहासिक काल से भारत ने भी हमेशा से इन सारी प्राकृतिक विरासतों की ना सिर्फ इन पर गर्व किया है बल्कि इन्हें सहेज कर संभाल कर रखा भी. जैसे कि बनियान ट्री या पीपल ट्री की बात करें, आज भी हम सब हमारे काफ़ी सारे धर्मों में इन सारी चीज़ों की पूजा होती है. भारत में ना सिर्फ इन सब चीज़ों की बल्कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, किसी भी प्रकार के अगर आप खेतों से अगर जुड़े हुए हैं, गाँव से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि किसान हमेशा कोई भी चीज़ धरती में लगाने से पहले, उगाने से पहले उसे भगवान को चढ़ाता है, भगवान की अर्चना करता है और उसके बाद फिर उसे अपने काम को आगे बढ़ाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब हमारे कल्चर में बहुत पहले से इवॉल्व करके हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें हमें दे दी. उसके बाद द फोर्थ थिंग, एज यू कैन सी हियर, वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ यानी जो हमारा वन्य जीवन है, राइट, जो हमारे जीव जंतु हैं जो रहते हैं, उसमें भी काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है. जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजार्ड. आई होप आप सभी लोगों ने इनके नाम सुने होंगे. और ना सिर्फ ये सारे, भारतीय सभ्यता के अंदर जो भगवान होते हैं यानी गॉड एंड गॉडेस, उनके व्हीकल्स के रूप में, व्हीकल्स लाइक वाहक के रूप में भी इन सब का उपयोग होता था. और ख़ासकर इनमें जो नाम थे वो हैं 4 लॉयंस, 4 हॉर्सेस, बुल्स, राइट. आपने देखा होगा बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनके वाहक यानी जिनके व्हीकल्स एनिमल्स होंगे, राइट. सो लेट्स मूव फर्दर एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ अवर नेचुरल heritage. It's divided into 4 parts: our landscapes, our river, our vegetation, and our wildlife. Now we'll talk about some cultural heritage. As you can see on the screen, these are some examples of our cultural heritage. Or in other words, we can say that cultural heritage is also a man-made heritage. यानी जो मानव निर्मित विरासत है, यानी जो हमें प्रकृति से नहीं मिला बल्कि हमें ये चीज़ हमारे पूर्वज खुद बनाकर डेवलप कर गए हैं. So let's move it and let's complete it too. Our cultural heritage is also called man-made heritage, as I have told you. From the ancient time of Aryans, Kshatrap, Kushan, Huns, Persian, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिश, फ्रेंच, बहुत सारे लोग भारत में आके गए, राइट. फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम आर्यन से लेकर हम फ्रेंच तक की बात करते हैं क्योंकि सबसे लास्ट भारत से जाने वाले फ्रेंच थे. इन्होंने अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइब्स भारत में डेवलप किए और यही ट्राइब्स आगे जाकर यानी इस समय में बहुत ही विविध, बहुत ही वैरायटी में आज मिल रहे हैं. फ्रॉम द एंशिएंट टाइम 5000 ईयर्स ओल्ड जो स्कल्पचर आप देख सकते हैं, द बियर्ड मैन स्कल्पचर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन वी हैव गॉट. और बहुत सारे गॉड, गॉडेस, ह्यूमन, एनिमल्स के स्कल्पचर्स हमें ज़मीन के नीचे से मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले भी भारतीय सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें. सो वन हु फील एस्टीम, प्राइड एंड ऑनर फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज. फर्दर व्हेन वी लुक अबाउट द फिगर ऑफ बुलक और लॉयड्स इन्वेंटेड इन द लोटस ऑफ मौर्यन एरा, यानी जब हम मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं, मौर्य शासन की बात करते हैं, राइट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने लॉयन और बुलक्स को अपने स्तंभों में एज एन डिज़ाइन की तरह उन्होंने उसे ऐड किया. यानी उस समय से भी ये देखा जाता है एंशिएंट टाइम के स्कल्पचर से कि जो आकृतियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थी नेचर से, कल्चर से,
यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कल्चर कहाँ से आया, कल्चर नेचर से आया। नेचर ने जो हमें दिया, हमने उसे इवॉल्व करके अडेप्ट करके उसमें कुछ चेंजेस लाकर अपना कल्चर बना लिया। एंड सेम वी कैन सी एज इन गौतम बुद्धा's टाइम द मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ कलकन स्टैचू इन जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। और ये राष्ट्रकूटा की जो डायनेस्टी थी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये भी इनके जो केव्स इन्होंने बनाए एंशियंट टाइम में, जो ये बताते हैं भारतीय कल्चर के बारे में ऑफ एंशियंट टाइम। बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर अवर कल्चर। सो स्टूडेंट्स, this all thing shows our sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosque, tomb, fort and gates. राइट, भारत में बहुत सारी चीज़ें, राइट, क्योंकि हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक संस्कृति की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं। और भारत एक ऐसा कल्चर है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म इंक्लूडेड हैं। और इन सभी लोगों ने मिलकर अपने स्कल्पचर, स्तूप, विहार, चैत्य जो जैनियों ने बनवाए, टेम्पल्स हिंदुओं के लिए, मॉस्क्यू, टॉम, फोर्ट्स, गेट्स मुसलमानों के, ये सारे भारत में आज भी पाए जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक साबरमती आश्रम इन दांडी, बारडोली, वर्धा एंड शांति निकेतन इन कोलकाता, दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, हमने पढ़ा भी है इन बारे में। और उसके साथ साथ भारत में, प्लीज़ अंडरलाइन इट, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एटनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, इन सब का भारत में ही विकास हुआ है। युद्ध शास्त्र, चैरिट यानी आपने जो रथ देखे होंगे, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशियरी, लेजिस्लेशन, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तक, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज रही है भारत की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल सेंटेंस। हमारी जो संप्रभुता है, जो हमारी एकता है, कि सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें विविधता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, और I have made some effort to make you understood about this natural and this cultural heritage. Student, this is a small video. ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि यूनेस्को ने हमारी इन इंडियन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।